Maths Express. Today we are studying chapter percentage, and in this chapter we would learn how to convert a fraction, a decimal into percentage, and also how to convert a percentage into fraction, decimal or a ratio. So let us get started. Now first of all, let us learn what do we mean by percentage. Now the word percentage comes from the word percent. Here the word percent is made up of two words, per and cent. So here the word cent means 100. So we can say that percent means per 100. So when we talk about percentage, so the word percent means per 100. So percentage is a fraction with denominator 100. That is, the word percent here is denoted by the sign percent here, right? Now when we talk about percentage, I told you percentage is a fraction with denominator 100. So if I say 45%, then 45% means 45 upon 100. If I say 83%, so 83% means 83 upon 100. Similarly, if we say 0%, so 0% is equal to 0 upon 100, that is equal to 0. And when we talk about 100%, 100% means 100 upon 100. And both cancel out and this is equal to 1. So we say 100% is equal to whole, that is 1. Now looking at our first question, we need to convert the fraction into percentage. So whenever you need to convert a fraction or a decimal into percentage, you multiply it by 100. Here I have got 4 upon 5. हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए विल मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 100. हम 4 अपॉन 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. Here if you see, हम 5 और 100 को कैंसिल कर सकते हैं. 5 20 the 100 and 4 into 20 is 80. और क्योंकि अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, we had multiplied by 100, so अब हम यहाँ पर परसेंटेज साइन लगाएंगे. Now let us look at our next question. यहाँ पर हमारे पास है 7 upon 25. हमने 7 upon 25 is a fraction. इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर भी if you see 25 और 100 को हम कैंसिल कर सकते हैं. 25 4 the is 100 and 7 into 4 is 28. So हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है and now we put the percentage sign. So we get 28%. So 7 upon 25 फ्रैक्शन है और जब हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में बोलेंगे so we call it as 28%. Now the next question. The question says convert the following decimal into percentage. चाहे हम फ्रैक्शन को या डेसिमल को या किसी भी होल नंबर को जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है वी मल्टीप्लाइड बाय 100. अब हमारे पास डेसिमल में है 5.7. हमने 5.7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सो वी मल्टीप्लाइड बाय 100. सो लेट अस मल्टीप्लाइड बाय 100. अब 5.7 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल इन माय अर्लियर वीडियो आल्सो. आपको वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग 5.7 बाय 100. यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, हम डेसिमल को 1 प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे, 1 0 कैंसिल करेंगे एंड वी गेट 557 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो वी गेट 570%. So 5.7 is equal to 570%. Next question I have got 6.125. Now again this is a decimal और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अगेन भी मल्टीप्लाइड बाय 100 और अगेन क्योंकि 100 में 2 zeros है सो वी नीड टू शिफ्ट द डेसिमल 2 प्लेसेस. हमने डेसिमल को 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट किया तो हमारा आया 612.5. सो वी गेट 612
0.5%। सो 6.125 डेसिमल है और जब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो इट हैज बिकम 612.5%। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हमने इन परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है एंड आई टोल्ड यू percentage means a fraction with denominator 100. That means percentage में हमेशा percentage एक fraction है जिसका denominator हमेशा 100 ही रहेगा. So 12% means 12 upon 100. तो हमने इस percentage को fraction में convert कर दिया है. तो 12% means 12 upon 100 क्योंकि denominator हमेशा 100 रहेगा. But we always need to convert a fraction into its simplest form. हमने fraction को उसके simplest form या उसको lowest term में convert करना होता है. So इसको हम convert करेंगे. We can divide both numerator and denominator by 4. हम denominator को और numerator दोनों को 4 से divide करेंगे. So we can cancel. Now 4 3 the 12 और जब हम 100 को 4 से divide करेंगे 25 4 the is 100. So we get 3 upon 25. Now next question. Now ये वाला क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पर हमारे पास डेसिमल है 3.75%. Now percentage है that means it is a fraction with denominator 100. So 3.75% means 3.75 upon 100. अब हमने इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नाउ यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं. तो फर्स्ट थिंग हमने डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा. क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ डेसिमल रिमूव करेंगे और हम डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद होते हैं हम उतने जीरोस लगाते हैं. सो वी गेट 375 अपॉन 100 into 100. अब हम इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो हम इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं. 5 7 the 35, 5 5 the 25 and 5 20 the is 100. अब दोबारा हम इसे 5 से कर सकते हैं. 5 15 the 75, 5 4 the 20. अब ये दोनों तो कैंसिल नहीं हो सकते. वी कैन कैंसिल 15 and 100. 5 3 the 15, 5 20 the 100. So we get यहाँ पर हमारा आंसर आएगा. न्यूमरेटर में हमारे पास 3 है और डिनोमिनेटर में 4 into 20 that is equal to 80. So we get 3 upon 80. So we have converted 3.7% to fraction form और fraction में हमारा आंसर आएगा 3 upon 80. Now here I have got 115 1 upon 2%. ये हमारा मिक्स फ्रैक्शंस में है. तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. So we get 2 into 150 230 plus 1 231 upon 2%. Now percentage means upon 100. तो हम 231 upon 2 को upon 100 कर देंगे. तो 231 upon 2 divided by 100. Now जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं हम सेकेंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं. सो 231 upon 2 हम लिखेंगे into 1 upon 100. Now we can multiply. 231 into 1 is 231. 2 into 100 is 200. Now इस केस में कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा था. So we have multiplied and we get 231 upon 200. और अगर आप देखेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे and we get one whole number 31 upon 200. Now let us learn how to convert a percentage into ratio form. Now यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है 125%. Again percentage means upon 100. So 125% को हम लिख सकते हैं 125 upon 100 क्योंकि परसेंटेज के फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर 100 रहता है. नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा हम इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 25 से कैंसिल कर सकते हैं. 25 5 the 125 25 4 the. So we get 5 upon 4.
बट ये हमारा आप देखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में है और हमें आंसर चाहिए रेशियो फॉर्म में। सो फ्रैक्शंस को जो हम रेशियो में लिखेंगे, सो 5/4 को हम लिख सकते हैं 5:4, राइट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पर हमारे पास है 6 होल नंबर 2/3%। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। 3 6 18 प्लस 2 20/3%। Now percentage means upon 100, so हम इसको लिखेंगे 20/3 और इसको डिवाइड करेंगे 100 से। अपॉन 100 लिखें या डिवाइडेड बाय 100। Now डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 100 का रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड इट बिकम्स 1/100। अब 20 और 100 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल्स, 2 5 10 और हमारा आया आंसर 1/15। तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है 1/15, ये हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। अब हम इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, सो वी कैन राइट इट एज 1/15। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पर हमने होल नंबर देख लिया है, हमने फ्रैक्शन किया। नाउ लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास डेसिमल है। नाउ डेसिमल एज अ परसेंटेज, नाउ 10.10%, इसको हम लिख सकते हैं 10.10 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप देखेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास डेसिमल है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर का डेसिमल हटाएंगे एंड वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 100। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमने डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई किया है। सो वी गेट 1010 अपॉन 100 इंटू 100। अब इसको लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कैंसिल करना पड़ेगा। सो वी कैंसिल, 0 0 कैंसिल्स, और अगर आप देखेंगे और कुछ कैंसिल नहीं हो पा रहा है तो वी कैन राइट इट एज 101 अपॉन 1000। सो नाउ वी हैव गॉट 101 अपॉन 1000 और इसको अब हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। सो वी राइट इट एज 101 रेशियो 1000। Now let us look at our next question. Now this question says convert the following ratio into percentage. हमें इन ratios को percentage में convert करना है and we all know कि हम ratio को fraction form में लिख सकते हैं। So यहाँ पर 57/300 है, तो इसको हम fraction form में लिखेंगे 57/300 और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इफ यू सी वी कैन कैंसिल एंड 319 का इज 57, सो वी गेट 90%। सो हमने इस रेशियो को अब परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। सो फर्स्ट स्टेप होगा रेशियो का, आप उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट अस ट्राई वन मोर एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास है 14/25, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। सो हम इसको लिखेंगे 14/25। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Here we can cancel 25 4 and 14 into 4 is 56. So we get 56%. So 14/25 को that is equal to 56%. Now in this question we need to convert the following percentage into decimal. So here I have got 9%. 9% को हमने decimal form में लिखना है। सबसे पहले 9% का मीनिंग होता है, हम इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 9% को हम लिख सकते हैं 9/100। अब आपने देखा यहाँ पर कि फ्रैक्शन में हमारे पास 100 है और ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर हमारा 10, 100, 1000 होता है उनको हम इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9/100 है, 100 में 2 zeros होते हैं, दैट मीन्स अब हमारा डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद आएगा। बट न्यूमरेटर में हमारे पास 9 है, 1 प्लेस है,
इसके आगे हम 0 लगाएंगे एंड वी पुट अ डेसिमल, सो वी गेट 0.09. सो 9% को 9/100 पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा, सो दैट इज 0.09. एंड हाउ टू कन्वर्ट a fraction into decimal, I have given the link in the description. मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 16.7%. द 16.7% अगेन ये आपका परसेंटेज फॉर्म में है, तो हम इसको अब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे. सो 16.7% को हम लिख सकते हैं 16.7/100. अब क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 है, डेसिमल हमारा 2 प्लेसेस लेफ्ट में और शिफ्ट होगा, 1 2 प्लेसेस शिफ्ट हुआ, सो वी गेट 0.167. इसके आगे हम 0 लगा देंगे, सो 16.7% इज इक्वल टू 0.167 इन डेसिमल फॉर्म. Now next one, I've got 23 1/4%. अब ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं. 23 into 4 is 92 plus 1, तो ये आया हमारा 93/4%. अब इसको नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो वी राइट इट एज 93/4 into 1/100. और ये हमारा आया 93/4 into 100 is 400. Now 93/400 है, अब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो इसके लिए हमें 93 को 400 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो लेट अस डिवाइड 93 by 400. अगर आप देखेंगे 93 को हम 400 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं सकते, तो डेसिमल लगाएंगे, वी पुट अ 0. 400 to the is 800, यहाँ हम 800 लिखेंगे, वी सबट्रैक्ट, वी गेट 130, वी पुट 1 more 0, अगेन 400 into 3 is 1200, वी गेट रिमाइंडर 100, अगेन एक 0 लगाएंगे, 400 to the 800, subtract किया, we get 200, 1 more 0 and 405 the is 2000. Now we got the remainder 0. So हमने 93 को 400 से डिवाइड किया and now we get the answer as 0.2325 और इसके आगे हम एक डेसिमल लगाएंगे. So we have converted this fraction into decimal form.